Hello students, today I will discuss about the monohybrid cross. लेकिन इससे पहले हम पीछे वाले वीडियो का कुछ रिकैप्चुलेशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मेंडल worked on garden bee, scientific name Pisum sativum. Seven characters, or you can say that 14 contrasting traits. मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स और 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पे वर्क किया था. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 14 in garden bee, or you can say that 7 pairs. ऐसा विश्वास किया जाता है था कि ये 7 कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट ऑन द 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. लेकिन एस ब्लिक्स और एस ब्लिक्स डिस्कवर्ड दैट genes of 7 characters are present on only 4 pairs of chromosomes. That is 1, 4 and 1, 4, 5 and 7 and 7. Look at this diagram. अगर इस डायग्राम को देखोगे तो आसानी से आप समझ जाओगे. 7. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. क्रोमोसोम नंबर 1 पे genes of 2 characters are present. Chromosome number 4, 3. Chromosome number 5, 1. And chromosome number 7, that is 1. अब इसे टोटल करो, 2 2 and 3 5, 1 6 and 1 7. These 7 pair of characters, that is the genes of 7 pair of characters are present on this 4 pairs of chromosomes. 1, 4, 5, 7. अब इसे याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट we will discuss about the Mendel's work or Mendel's experimental techniques. मेंडल ने अपने सभी क्रॉस में इन 3 वर्क्स को डिस्कस किया है. Mendel's work, or you can say Mendel's experimental technique. Okay,
These are the three works of the Mendel. First one, selection of pure parents. Selection of pure parents. Second one, hybridization of pure parents. And third one, selfing. We will discuss about these three works one by one. First, selection of pure parents. He developed homozygous parents. Homozygous parents, that means pure line. Pure line, or you can say pure parents. He developed homozygous parents by selfing up to several generations. Up to several generations. After the selection of your parents, hybridization. Hybridization of pure parents. He made a cross between the two pure parents of contrasting traits of a same character by emasculation and bagging. You have already studied about emasculation and bagging in second chapter, sexual reproduction of flowering plants. Third one, selfing. Selfing. Selfing means self-pollination. Self-pollination. He made the self-pollination in F1 hybrid or F1 generation plants. Now, we will discuss about the monohybrid cross. Monohybrid cross. Mendel's performed a cross between the two contrasting traits of a character. Or you can say that when Mendel performed the inheritance of one character is called monohybrid cross, and an individual which consists of the pair of contrasting traits, or you can say alleles of contrasting traits, is known as monohybrid. For example, capital T, small t. An individual which has
the contrasting alleles of a traits or contrasting traits, or you can say that is the alleles of two contrasting traits of a character, that is monohybrid. इसलिए मोनोहाइब्रिड क्या होते हैं, जिसमें एलील्स ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड. Mendel performed the 7 monohybrid cross. मेंडल ने कितने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए, 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए. ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले जिस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, ठीक है, वह क्या था, राउंड एंड wrinkled seeds. Okay, that means shape of seeds. Shape of seeds. Mendel's developed the 14 pure contrasting traits. Traits. 14 pure contrasting traits को उन्होंने डेवलप किया था by the process of selfing. Okay. Now we have to select the one character, either shape of seeds or size of the plants, height of the plants जिसे कहते हैं, color of pods, shape of pod, इन सभी में से किसी एक कैरेक्टर को हमें सिलेक्ट करना है और उस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करना है. ठीक है, इसमें ये दो चीजें याद रखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कितने से वर्क किए थे, परफॉर्म किए थे, तो 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए थे. ठीक है, उन्होंने 14 प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का डेवलपमेंट किया था. ठीक है, ये 14 प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स किसके, 7 कैरेक्टर्स के, 7 कैरेक्टर्स के. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला कैरेक्टर है, हम लेते हैं शेप ऑफ सीड्स. जिस कैरेक्टर ने मेंडल को अट्रैक्ट किया था, जिस कैरेक्टर ने मेंडल को अट्रैक्ट किया था और जिसपे उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मजबूर किया था. ठीक है, तो सबसे पहले हम शेप ऑफ सीड्स के बारे में जान लें. राउंड एंड wrinkled seed. Round and wrinkled seed. Its genotype capital R. It is a small r. ये प्योर पेरेंट्स हैं. प्योर पेरेंट्स क्या होते हैं, होमोजाइगस. अभी जस्ट हमने मेंडल्स के वर्क में बताया था कि यह होमोजाइगस होते हैं. ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन. पेरेंटल जनरेशन. ओके, नाउ we have to find the gametes. तो gametes क्या होंगे इनके, gametes के जीनोटाइप कैपिटल R एंड स्मॉल r.
गैमीट्स के लिए भी, टाइप्स ऑफ गैमीट्स के नंबर को भी फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप आसानी से टाइप्स और नंबर को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमीट is equal to 2 raised to the power n. N equal to number of heterozygous or alleles, not alleles, number of heterozygous or alleles. Alleles का मतलब contrasting alleles. ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है नहीं, क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहां पर भी क्या है, इसमें भी होमोजाइगस कंडीशन है। यानी इस कंडीशन में n क्या हो गया, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। यानी ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स will form from the parental generation. नंबर्स बहुत हो सकते हैं लेकिन टाइप्स एक ही तरह के होंगे। केवल डोमिनेंट के केस में, राउंड के केस में 1 r और रिंकल के केस में स्मॉल r। ओके, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote consists of capital R, small r. Okay, and it is called F1 generation. F1 generation means first filial generation. Filial means progeny. First filial generation means first progeny of this cross. Okay, it is also called F1 hybrid. तो नाउ अब यहीं पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1 हाइब्रिड। तो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r, एंड इट्स फिनोटाइप इसकी क्या होगी, राउंड। इसको फिनोटाइप क्या होगी, राउंड। ओके, तो मेटल के देखो दो वर्ग हो गए। पहला क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स। हमने सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स यहां पर देख रहे हैं। नाउ आफ्टर दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच क्या हो रहा है, क्रॉस कराए जा रहे हैं और ठीक है, फर्स्ट प्रोजेनी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। एट दिस यू कैन राइट फर्टिलाइजेशन। यहां पर तुम लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर दैट थर्ड, ये दो वर्ग हो गए मेंटल के। अब तीसरा वर्ग देखो, क्या है तीसरा वर्ग, सेल्फिंग। दैट मींस वी हैव टू मेक द सेल्फिंग, दैट मींस क्रॉस बिटवीन द F1 hybrid, that means capital R small r is crossed with the capital R small r generally। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, सेल्फिंग। ओके, सेल्फिंग, that means capital R small r। अगर हम इसे मेल फ्लावर लेते हैं तो यहां पर हमें इसे क्या करना होगा, फीमेल फ्लावर। ओके, अब इसके आगे दो मेथड्स हैं। इसके आगे इसको बनाने के कितने मेथड्स हैं, दो मेथड हैं। ठीक है, एक है फॉर्क मेथड, ठीक है, और दूसरा है टेबुलर मेथड। ठीक है, जिसे हम पुनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस मेथड से देखेंगे।
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहां पर आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म फ्रॉम दिस, ओके, जीनोटाइप। इस जीनोटाइप से कितने तरह के गैमेट्स फॉर्म होंगे। यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हैं, वन, ओनली वन टाइप ऑफ हेटेरोजाइगस। इसे हम क्या कहते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ हेटेरोजाइगस। तो 2 रेज़ टू द पावर, हमारे फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है, 2, यानी दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन टाइप्स ऑफ गैमेट दो ही तरह के होंगे, ठीक है, ओके। अब कहोगे कि जीनोटाइप उनके क्या होंगे, गैमेट्स के जीनोटाइप क्या होंगे। इसके लिए भी एक मेथड है जिसको हम कहते हैं फॉर्क मेथड, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स हैं। इनमें कितने तरह के हैं जीनोटाइप, दो तरह के कॉन्ट्रास्टिंग हैं। तो इसलिए जब ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे या कंट्रास्टिंग फॉर्म में होंगे तो हमें दो फॉर्म का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और अगर होमोजाइगस होंगे तो सिंगल, एक। ये बातें हमेशा याद रखना। आगे जब फर्दर आप डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो लुक एट दिस, दो फॉर्म बन गए, एक में कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर। और यहां पर देखो होमोजाइगस है तो एक फॉर्म बना तो एक ही आर आएगा ना, इसलिए वहां पर देखा अभी जस्ट पेरेंट्स में एक ही टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहां पर दो तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, एक कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल आर, ओके। इसलिए यहां पर भी हम बनाएंगे टू टाइप्स ऑफ गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल आर। फीमेल के भी दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। It is the first method. It will be round, linkered, round, round. Okay. Next method, टेबुलर मेथड, जिसे हम आरसी पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि पुनेट स्क्वायर को आरसी पुनेट ने डेवलप किया था, इसलिए उसे हम पुनेट स्क्वायर और आरसी पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। पुनेट स्क्वायर method. Punnett square was developed by R.C. Punnett. What is Punnett square? Punnett square is the graphical representation of the genotypes of the progeny obtained by a cross. Obtained by a cross. एक क्रॉस से जितने भी प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है उनके जीनोटाइप को पुनेट स्क्वायर क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, नाउ लुक एट दिस। आरसी पुनेट के कुछ रूल्स हैं,
Okay, column and row. First column represent the female and first row represents the male gamete. Okay, look at this. Male gamete and it is female gamete. Now you have to form 3 column and 3 row. One more than the number of gametes. आपने अभी जस्ट पढ़ा था 2 raised to the power 1 equal to 2. तो gametes कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2. तो कॉलम कितने बनेंगे? 3 और रो कितने बनेंगे? 3. फर्स्ट रो that is the male gamete, फर्स्ट कॉलम फीमेल gametes. ओके, ये पुनेट स्क्वायर के नियम है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. Now you have to write the gametes. Now you have to make the cross or hybridization. In the first box, capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, small r, small r. Okay? Now you have to write the phenotype inside the box. What will be the phenotype? Phenotype already you know. Observable characters. Round, 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 wrinkled. It is called F2 generation. It is called F2 generation because this is developed after the selfing in F1 hybrid. F1 hybrid के बीच selfing करा के जो generation के progeny हमें मिले उन्हें हम क्या कहते हैं? F2 generation. Okay, and all these are called F2 hybrid. Okay. Now, first of all, we have to write the phenotype and genotype. Phenotype, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? Phenotype of F2 generation. क्या होगा phenotype में? सबसे पहला phenotype क्या appear हुआ? Round, round. The number of round? 3. राउंड 6 के नंबर क्या है? 3 है. ठीक है. और सेकंड फिनोटाइप क्या हुआ? अपीयर रिंकल्ड. ओके, इनके नंबर्स कितने हैं? 1. तो नाउ यू कैन शो इन रेशियो, तो वो क्या कहलाएगा? फिनोटिपिक रेशियो. क्या कहलाएगा? फिनोटिपिक ratio. Phenotypic ratio equal to 3:1. 3:1. Now you have to write the genotype of the F2 generation. तो पहला जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो कैपिटल आर के नंबर्स कितने हैं? 1. सेकेंड जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, इनके नंबर्स क्या हैं? 2. और लास्ट वन स्मॉल आर, द नंबर ऑफ दिस 1. और जब इनको हम रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? जीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक ratio. It will be 1:2:1. ठीक है. तो आपने देखा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. You have to learn from the
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही आपको सभी क्रॉस के बारे में सीखना है। ठीक है, प्रॉपर वे में, जिस तरह से हमने किया पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन, एक बीच में क्या आया था, गैमीट्स, वो सभी को प्रॉपर वे में आपको लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? 12th स्टूडेंट बच्चों के लिए ये प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, नीट के एग्जाम के पर्पस से इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के जेनेटिक प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके सारे ट्रिक्स मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए। ओके, तो सबसे पहला जो चीजें मैं बता रहा हूं वो किसी बुक में या कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसे आपको मेरे अकॉर्डिंग याद रखना है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सबसे पहला पुनेट स्क्वायर को में हमने दो डायगोनल्स बनाए हैं। ठीक है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर देखो, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डायगोनल। और जो अंदर से बाहर की ओर डायगोनल आ रही है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरनल डायगोनल। इसे हमने क्या नाम दिया है, एक्सटर्नल डायगोनल, और इसे क्या नाम दिया है हमने, इंटरनल डायगोनल। ठीक है, एक्सटर्नल डायगोनल और इंटरनल डायगोनल। चाहे कोई भी क्रॉस हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, डायहाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो, उन सभी केसेस में याद रखना है कि जो एक्सटर्नल डायगोनल जिस जिस बॉक्स से होकर क्रॉस करेंगी वो सभी प्योर हाइब्रिड होंगे। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो डायहाइब्रिड होंगे, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है तो ट्राइहाइब्रिड होंगे, और ये कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड, इसमें ये मोनोहाइब्रिड होंगे। तो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, प्योर हाइब्रिड है, यानी मोनोहाइब्रिड। कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दूसरा बॉक्स भी हाइब्रिड है। ठीक है, एक पहला रूल हो गया, फर्स्ट एक्सटर्नल डायगोनल का आपने जान लिया। अब इंटरनल डायगोनल, दूसरा रूल क्या है, इंटरनल डायगोनल होमोजाइगस होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, डायहाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो, इन सभी केसेस में इंटरनल डायगोनल जिस जिस स्क्वायर बॉक्स से पास करेंगे उन सभी के प्रोजेनी क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल डायगोनल प्योर हाइब्रिड और इंटरनल डायगोनल, ओके, इंटरनल डायगोनल क्या होंगे, होमोजाइगस। ठीक है, ये दो रूल जान गए। अब तीसरा, थर्ड रूल को अगर आप याद रखते हैं तो F2 जनरेशन में प्रोजेनी के रेशियो को, जीनोटिपिक रेशियो को निकालना, ठीक है, बहुत आसान है, चुटकी बजाओ आंसर सामने होगा। ठीक है, तो सबसे पहला होमोजाइगस ऑलवेज वन, होमोजाइगस हमेशा किस में होगा, देख रहे हैं आप, होमोजाइगस हमेशा वन होंगे। देखिए होमोजाइगस ये भी है, ये भी होमोजाइगस है, दोनों होमोजाइगस है, इसलिए दोनों के नंबर क्या है, वन वन। और मोनोहाइब्रिड हेट्रोजाइगस ऑलवेज टू इन नंबर। ठीक है, ऑलवेज, कोई भी क्रॉस हो। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं आपको, लुक एट दिस, मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, तो बताइए इसके क्या कितने नंबर्स होंगे इस रूल के अनुसार, डायहाइब्रिड क्रॉस में इनके नंबर्स कितने होंगे। ठीक है,
बताना बहुत आसान है। अगर इस रूल को आप फॉलो करें तो विदाउट फॉर्मिंग ए यूनिट स्क्वायर यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे? देखो ये क्या है, 2 हाइब्रिड है, इसके नंबर क्या बताया मैंने, 2 मोनोहाइब्रिड है ये, ठीक है, इसका हमने लिख दिया। अब ये क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस के लिए क्या बताया मैंने, 1, तो 1। अब आप जानते हैं इन दोनों के बीच अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एक मल्टीपल फॉर्म होता है, ठीक है, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई साइन, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट द आंसर 2, यानी इसके नंबर्स कितने होंगे, 2 होंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके नंबर्स कितने होंगे, अब आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड 2, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड, ठीक है, तो 2 into 2 इक्वल टू 4। अब आप यूनिट डायहाइब्रिड क्रॉस जब स्टडी करेंगे तो उनके यूनिट स्क्वायर में इनके नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे ये 4 होते हैं, इनके नंबर्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो ये अगर रूल आपने याद रखा तो आप आसानी से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ही डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, ठीक है, क्रॉस के जेनेटिकल प्रॉब्लम्स के आंसर्स को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बना के आपको बता रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी F1 जनरेशन हम पूरा लिख ही रहे हैं, इसको हम सिंपल आप लोगों को एक प्रॉब्लम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस दैट इज द सेल्फिंग, इनकी सेल्फिंग हो रही है, ये क्या कहलाते हैं, 1, कितने हैं ये, 1 जीन है, that is the capital R is the half gene, that means 1 allele, it is the half gene, इसलिए ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हाफ को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ को, उसी तरह से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ को। अब आ जाओ कैपिटल आर और कैपिटल आर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/4, ये भी जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/4, और ये भी क्या होंगे, 1/4। तो देखो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, आउट ऑफ 4 कैपिटल आर, यस कैपिटल आर 1/4 इन नंबर। उसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं, 1/4 और 1/4, अगर इनको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2/4, दैट मींस आउट ऑफ 4 2 इज कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर इट इज 1/4, दैट मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल आर और होमोजाइगस डोमिनेट 1/4, heterozygous dominant 2/4 and homozygous recessive 1/4. Mathematically, you can also explain by this way. आप लोगों ने क्लास 5th 6th में 7th 8th 9th में कोई भी एक क्लास में आपने शुरू से ही इसको पढ़ा होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, जिसको आप लोगों ने किस फॉर्म में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं हम
कैपिटल आर स्मॉल आर का सेल्फिंग हो रहा है यानी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको कैपिटल आर को 1/2 आर लिख दें प्लस 1/2 स्मॉल आर का होल स्क्वायर कर दें। अब इसको फॉर्मूले पे पुट करो, 1/2 कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 कैपिटल आर इंटू 1/2 स्मॉल आर प्लस 1/2 स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ओके, तो नाउ इट विल बी 1/4 आर स्क्वायर का मतलब आर आर प्लस इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2/, यहां पर मैथमेटिक्स यूज नहीं करना है, 2/4 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 1/4 स्मॉल आर। देखो वही प्रोबेबिलिटी आया, कैपिटल आर 1/4 कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4 और स्मॉल आर 1/4। So now by this way you can also find the probability of this cross, okay, and you can write the answer of this, ठीक है। और इसी probability के आधार पे फर्दर आगे और भी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स जो होंगे उनमें तुम यूज कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो और आसानी से उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। Now, on the basis of monohybrid cross, Mendel introduced the three postulate. ठीक है? On the basis of monohybrid cross, Mendel introduced three postulates. Mendel ने three postulates को इंट्रोड्यूस किया। पहला, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ dominance, and third one, principle of segregation, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों को एक साथ पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इन दोनों को आपने एक ही में पढ़ा होगा। और सेकेंड वन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, आउट ऑफ दीज थ्री postulate only one, the principle of segregation, change into the law. इन तीन पॉस्टुलेट में से केवल एक ही पॉस्टुलेट को किसमें चेंज किया गया? लॉ में चेंज किया गया। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसने किया था? कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस। फर्दर आगे एक और पॉस्टुलेट पढ़ोगे डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो उसके आधार पे आपने क्या जाना कि मेंडल्स इंट्रोड्यूस फोर पॉस्टुलेट, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड फोर्थ पॉस्टुलेट क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट, जिसमें से प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट को लॉ में चेंज किया था। किसने? कार्ल कोरेंस ने। इसलिए मोस्ट ऑफ द जेनेटिस्ट कहते हैं कि मेंडल्स के केवल टू लॉज हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। कौन कौन? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्रिंसिपल ऑफ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। लेकिन कुछ जेनेटिस्ट
कहते हैं नहीं, मेंडल्स के 3 लॉ है, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। इसलिए एनसीईआरटी में आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम पोस्टुलेट को पढ़ेंगे। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर according to this principle, the characters are controlled by a discrete unit, okay, called factors. Factors are present in pairs. मेंडल ने क्या कहा कि कैरेक्टर्स को एक डिस्क्रीट यूनिट क्या करती है? कंट्रोल करती है, और उस यूनिट का नाम उन्होंने क्या दिया? फैक्टर। और फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर्स। फैक्टर किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स में होते हैं। नाउ सेकंड क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस वर्ड is related to dominate or dominate. When the two pure contrasting traits are crossed, the contrasting alleles or alleles of the contrasting traits present in F1 hybrid, the traits which appear is known as dominant and other called recessive. That means the contrasting characters which appear in F1 hybrid or F1 generation known as dominant and other recessive. Or another way you can say that the contrasting trait or character which dominate on other is known as dominant and other is recessive. Third, principle of segregation. When the alleles of contrasting traits present in a hybrid for a long period of time or present in them, they are not get mixed. At the time of gamete formation, they are separated in the pure form. Only one allele is present in a gametes in pure form. Due to this, the principle of segregation or law of segregation is also known as the law of purity of gametes. Law of purity of gametes. Heterozygous produces 2 different type of gametes, but homozygous produces only 1 type of gametes. Okay, you have already observed in that cross, आपने देखा था कैपिटल R स्मॉल r, these genotype of a hybrid. ये हाइब्रिड के क्या है? जीनोटाइप है, इनकी ये एलील्स हैं, ठीक है। They are not get mixed, they are separated in pure form at the time of gamete formation, and each present in a gamete, और प्रत्येक that means gametes में क्या होते हैं? केवल एक होते हैं, ठीक है। कैपिटल R in one gamete, small r in another gamete.
ओके, इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। दैट मींस कि गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म। गैमेट्स जो होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं? प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस Mendel introduced the three postulate: principle of paired factor, principle of dominance and principle of segregation. इन तीन postulate में से, ठीक है, दो postulate को आप लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कार्ल कॉरेंस ने केवल principle of segregation को ही लॉ ऑफ segregation में चेंज किया था। ठीक है, the principle of paired factor and principle of dominance इन सभी के, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल। इट इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल लॉ, ओके, एंड इट वाज प्रूव्ड बाय द पैटिसन एंड पुनेट। इसे यूनिवर्सल लॉ के रूप में प्रूव किया था, उन्होंने ही इसे प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉ कहा। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल लॉ कहा। इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस, और उसी डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और यू कैन से जेनेटिकल प्रॉब्लम्स।